الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے جو اسلامیات لازمی 9th کلاس کے اسٹوڈینٹس اسلامیات کمپلسری نیو سلیبس کو فالو کر رہے ہیں, جو نیو بکس کو پڑھ رہے ہیں, تو ان کا پیپر نیو بکس میں سے آئے گا. تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ کن کن چیپٹرز میں سے شارٹ کوسچن, کن چیپٹرز میں سے لانگ کوسچن اور کہاں کہاں سے ایم سی کیوز آئیں گے, احادیث اور قرآنک آیات کا ترجمہ کن کن چیپٹرز میں سے آئے گا اور پیپر پیٹرن کیسا ہوگا. یہ 6 اکتوبر 2022 کو فیڈرل بورڈ نے اپلوڈ کر دیا تھا. سارا پیٹرن ہر چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے. تو اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اولڈ اور نیو یہ کیا مکس ہو رہا ہے. تو جن کی ڈیٹ شیٹ کے اوپر اولڈ لکھا ہوا ہے تو ان کا پیپر اولڈ بک میں سے آئے گا, اولڈ پیپر پیٹرن ہی ہوگا. اور جن کی ڈیٹ شیٹ کے اوپر نیو لکھا ہوا ہے تو ان کا پیپر پیٹرن اس کے اندر میں ڈسکس کروں گی, وہ نیو ہوگا. مارکس تو سیم ہے دونوں کے لیے, اولڈ اور نیو کے ٹوٹل مارکس سیم ہوں گے, لیکن سلیبس اندر سے چینج ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں. آپ دیکھیں یہاں پر فیڈرل بورڈ نے 6 اکتوبر 2022 کو یہ چیز بتا دی تھی. پیپر پیٹرن اینڈ ریوائز ماڈل پیپر کوسچن پیپر اکارڈنگ ٹو دا ریڈیوس کیریکولم آر, اچھا ریڈیوس سلیبس ہے اس میں. اب وہ ہم دیکھتے ہیں, موو آن کرتے ہیں. جو پیپر پیٹرن ہے آپ کا, اس پر غور کریں اور اس کو غور سے دیکھیں. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیکشنز آف دا پیپر اینڈ مارکس ایلوکیشن ول ریمین دا سیم. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے پیپر ہو رہے تھے اور ابھی جو پیپر ہوں گے یعنی اولڈ اور نیو, تو جیسا پیپر پیٹرن اولڈ کا تھا ویسا پیپر مارکس جو تھے اولڈ پیپر پیٹرن میں جتنے مارکس جن کوسچنز کو اسائن ہوئے تھے یہاں پر بھی اتنے ہی مارکس کا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اولڈ پیپر پیٹرن میں 10 نمبر کے ایم سی کیوز تھے تو نیو پیپر میں بھی 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے. جیسے وہاں پر 3 آیات کرنی تھی تو یہاں پر بھی 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا. پہلا پوائنٹ یقیناً سمجھ آ گیا آپ کو. دوسرا ہے ایم سی کیوز ول بی فارم آن دا ڈومین ایکسپٹ ٹرانسلیشن آف قرآن اینڈ حدیث. دوسرا پوائنٹ غور سے دیکھیں کہ ایم سی کیوز آپ کے قرآن اور حدیث میں سے نہیں آئیں گے. قرآن اور حدیث والے پورشن میں سے ایم سی کیوز نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو باقی چیپٹرز آ رہے ہیں اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے. 10 ایم سی کیوز ہوں گے اور 10 ایم سی کیوز آف 1. یہ تو پہلے بھی خیر ایسے ہی تھا کہ ایک نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا اور ایم سی کیوز میں کوئی چوائس نہیں ہوگی آپ کے پاس. آئی ہوپ سو پوائنٹ نمبر 2 آپ کو کلیئر ہو گیا. پوائنٹ نمبر 3 ہے ان ٹرانسلیشن آف دا قرآن کوسچن ٹرانسلیشن آف اینی 5 ورسز. اچھا پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو آپ کا پیپر تھا اس میں 5 قرآنک آیات ہوتی تھی, اس میں سے آپ نے 3 کا ترجمہ کرنا ہوتا تھا اور ایک ترجمہ جو ہے وہ 3 نمبر کا یعنی 9 نمبر کا آپ کا پیپر وہاں سے آتا تھا. تو اب صرف پیپر پیٹرن وہی ہے, صرف یہاں پر آپ کا جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی آیات کی ورسز کی, وہ سورہ لقمان, سورہ یاسین اور سورہ صاد میں سے ہوگی. یعنی اب کی بار آپ نے یہ 3 صورتیں تیار کرنی ہیں. ان 3 صورتوں میں سے 5 قرآنی آیات آئیں گی. 5 میں سے آپ نے 3 آیات کرنی ہوگی. 3 آیات کا ترجمہ آپ نے صرف لکھنا ہوگا. The question will be understood. What question will be understood? یہ question پہلے بھی ایسے ہی تھا, ابھی بھی ایسے ہی ہے, صرف یہاں پر سورہ چینج ہوئی ہے آپ کی. پارٹ نمبر 3 دیکھیں, 4th پارٹ, یہاں پر 3rd پارٹ کو ریپیٹ کیا ہوا ہے تو یہ 4th پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ 1 2 3 کے بعد 4 ہے, انہوں نے دوسری بار پھر 3 لکھا ہوا ہے. 10 ahadith will be part of the curriculum as available in the final curriculum. In second question, translation of 2 hadith will be given and یہ بھی پہلے ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں کتنی حدیث کرنی پڑیں گی, کون کون سی ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ وہی ہے. 2 احادیث دیکھیں لکھا ہوا نا, 10 احادیث will be a part of curriculum میں ٹوٹل 10 احادیث ہوں گی اور 10 the question will also be understood application of practical life. آپ کو پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ حدیث کا ایک نمبر کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا تھا, تو اسی طرح ابھی بھی ویسا ہی ہوگا. ٹوٹل 10 احادیث پہلے بھی تھی تو ابھی بھی ٹوٹل 10 احادیث ہوں گی. 2 احادیث گیون ہوتی ہیں اور اس میں سے آپ نے ایک لکھنی ہوتی ہے اور پھر اس کا ایک نمبر کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے اور ترجمے کے نمبر ہوتے ہیں اور 3rd تشریح کرنی ہوتی ہے. تو یہ ابھی بھی ویسا ہی ہے بالکل. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ہے شارٹ کوسچن ول بی گیون فار اچھا شارٹ کوسچن کہاں سے آئیں گے, کمپیٹنسی 6 and 7. تو اب کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ شارٹ کوسچن کے لیے آپ نے صرف ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام اور اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے, یہ ان چیپٹرز میں سے آپ کے شارٹ کوسچنز آئیں گے. کمپیٹنسی 6 and 7, یعنی اگر آپ یہ تیار کر لیتے تو آپ کے شارٹ کوسچن والا پورشن سالو ہو جائے گا. اس کے بعد پارٹ لاسٹ جو ہے اس میں ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوسچن یعنی لانگ کوسچن جو آپ کے آئیں گے, تفصیلی سوالات, وہ 2 3 4 اور 5 2 3 4 اور 5 ان چیپٹرز میں سے آپ کے لانگ کوسچن نکلیں گے. ایمانیات و عبادات,
सीरत नबी और अस्हाब सलाम और अखलाक व अदब और हुस्न मामलात और माशरत। तो आप देखें 2, 3, 4, 5 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन निकलेंगे। पेपर में 3 लॉन्ग थे, आपने उसमें से 2 करने होते थे, ओल्ड जो पेपर पैटर्न था। न्यू में भी ऐसा ही होगा कि 3 लॉन्ग होंगे, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए 2, 3, 4 एंड 5 है, तो इसमें से आप 3 चैप्टर अगर तैयार कर लेते हैं, 1 चैप्टर छोड़ देते हैं चॉइस पे, तो भी आप आसानी से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस फॉर ग्रेड 9। अब देखिए क्योंकि बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, तो हमने रिड्यूस सिलेबस करना है, यानी आपने वो सारे चैप्टर्स तैयार नहीं करने, सिर्फ कुछ चैप्टर्स तैयार करने हैं एकेडमिक ईयर 2022 और 23 के लिए। उसके बाद 2024 जब आएगा उसमें पेपर पैटर्न चेंज कर देंगे। फिलहाल अभी आपने रिड्यूस सिलेबस करना है, और रिड्यूस सिलेबस आपको नीचे बता दिया गया है ये टेबल में कि इसमें से हमने कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या करना है। तो आप देखें दायरा कार, यानी बस इन्हीं के अंदर रह के आपने करनी है तैयारी। पहला है कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से आपने 3 सूरतें करनी है, सूरह लुकमान, सूरह यासीन और सूरह स्वाद करनी है। उसके बाद तारुफ कुरान मजीद, 10 अहादीस नबी, आपने ये चीजें सिर्फ करनी है। दूसरा आ रहा है ईमानियात और इबादात, इसमें अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज। ये रिड्यूस सिलेबस है, बहुत कम करके बताया मैं। इसके बाद है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इसार, ये 3 टॉपिक्स आपने इसमें से चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद इखलाक व आदाब में से हसद से इज्तनाब, सिर्फ ये करना है। उसके बाद हुस्न मामलात और माशरत, उसमें आप देख लें हदायत के सरचश्मे और मशाइरे इस्लाम। अच्छा, ये तो जो चैप्टर लॉन्ग में आ रहे हैं उनमें से तो 2 चैप्टर शॉर्ट में हैं और 3 चैप्टर्स लॉन्ग में हैं। इसमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे, हजरत अब्दुल्ला आ रहे, हजरत शिफा रजी अल्लाह आ रहे, हजरत उम्मे सलीम, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन और इब्ने खुल्दून। इसके अलावा बाकी बुक्स में अगर कुछ टॉपिक्स हैं बाकी वाले, तो वो आपने अभी नहीं करने, आपका रिड्यूस सिलेबस है, आपने इतना ही तैयार करना है जितना ये सामने आपके मेंशन है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब हम एक पेपर देख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा, तो आप देख लें, इसमें 10 एमसीक्यूज आए हैं, ओल्ड पैटर्न जैसे था उसके अकॉर्डिंग। 10 एमसीक्यूज में इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा। अब देखें ये अकीदे वाले चैप्टर में से आ गया, इसी तरह इसके बाकी एमसीक्यूज आप देखते जाए, जो चैप्टर्स मेंशन है उसी के अंदर से इसके एमसीक्यूज आए हैं। सवाल नंबर 2 इसका देखें, उसमें मुख्तसर सवालात आ रहे हैं, तो मुख्तसर सवालात के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था कौन से चैप्टर्स में से मुख्तसर सवालात आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम 6 एंड 7। तो आप यहाँ पर देखें कि 6 और 7 चैप्टर का नाम क्या था। 6 और 7 चैप्टर हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, और 7वां था इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाजे। तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे उसी में से होंगे। अब देखें, ये अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, किन 2 चीजों को नबी करीम खातम नबी ने बड़ी नेमत करार दिया। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अब्दुल्ला, इलामा इब्ने खुल्दून, हजरत उम्मे सलीम, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, हजरत शिफा। देखें इन सारे नाम से आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इन्हीं में से आए हैं, क्योंकि आप देखें चैप्टर 6 और 7 में इनके नाम यूज हो रहे हैं। हजरत शिफा भी आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन भी आ रहा है, ख्वाजा निजामुद्दीन, इब्ने खुल्दून, यानी 6 और 7 चैप्टर आपने अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के, तो वो आपने आसानी से कर लिए। उसके बाद आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई से 2 सवालात हल करने हैं। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3, 4, 5, इसमें एक तौहीद से है, एक नबी किस्म खातम नबीयीन वाला और एक हसद के बारे में है। तो लॉन्ग चैप्टर्स के लिए आपको हमने ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर्स बता दिए थे, उन्हीं चैप्टर्स में से 3 लॉन्ग आए जिसमें से आपने 2 करने हैं। उसके बाद हिस्सा चहारम है, इसमें आपने कुरानिक आयात हैं और उसके सामने क्वेश्चंस हैं। आप देखें 9 नंबर के आएंगे, इसमें से आपने 3 करने होंगे, ये आपके पास 5 गिवन है। ये साइड पे देखें 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 में से आपने कोई सी 3 करने हैं। अब देखें पहली आयत है, और जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया वो नेक भी हो, तो यकीनन इसने मजबूत सहारे को थाम लिया और तमाम कामों का इंजाम अल्लाह ही की तरफ है। इसमें आप देखें यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि आयत का तर्जुमा दे दिया, अलिफ बे जीम सवाल निकाले हुए, आपने उसके जवाबात देने। अब देखें जैसे यहाँ पर आयत लिखी हुई है, उस आयत में से इन्होंने पार्ट उठा लिया और उसका मानी तहरीर करें।
किस शख्स को मोहसिन कहा गया? मजबूत सहारे से क्या मुराद है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अलिफ बे जीम जो सवाल है इनका जवाब आपके इसी के अंदर मौजूद है। उसके बाद दूसरा आप देख लें, उसमें भी ऐसा ही है, तीसरे में भी ऐसा ही है, चौथे में भी और पांचवें में भी। अब आप देखें यहाँ पर जो पार्ट 3 है, वज़रब लना मसला व नसिया खल्का, ये वाली आयत देखें आप। इसमें इन्होंने एक एक नंबर का तोड़ के नहीं दिया हुआ, तीनों नंबर का। इस आयत में मुनकरीन आखिरत के किस शुबा का अदाला किया गया है, तो आपने वो एक्सप्लेन करना है 3 नंबर के लिए। एक मिनट। अच्छा, आगे देखते हैं, इसका 5th पार्ट देख लें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब, ये किताब जो हमने आप पर नाजिल फरमाई बहुत बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। अब इसमें तर्जुमा दे दी है। अब अलिफ है उलुल अलबाब का मानी तहरीर करें, 1 नंबर का। फिर इस आयत में कुरान करीम की कौन सी सिर्फ बयान की गई है, 1 नंबर का। इस आयत की रोशनी में नुज़ूल कुरान का कोई एक मकसद, 1 नंबर का। तो ये तो ज्यादा आसान हो गया। पहले आपको तर्जुमा करना पड़ता था, अब आपको सिर्फ उसके अंदर से क्वेश्चन निकाले वो आपने करने हैं। अब अगला क्वेश्चन अहादीस मुबारका का आ गया है। उसमें ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और आपने इसमें से कितने सवाल करने हैं? अहादीस मुबारका को पढ़ें, आखिर में दिए गए सवालात के जवाब तहरीर करने हैं। अब 2 अहादीस मुबारका हैं। अब देखें, इसका भी ऐसे ही है, हदीस लिखी हुई है, उसका तर्जुमा लिखा हुआ है और आगे क्वेश्चन निकालने में आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे आयात के लिए हुआ था ऐसे ही टोटल 10 अहादीस है, उसमें से 2 अहादीस आपके पास आई है, दोनों का तर्जुमा लिखा हुआ है, सिर्फ सवालों के जवाबात लिखने हैं। अच्छा, दोनों में से आपने कोई एक करनी है। अब वो हमें ऊपर उन्होंने लिखा तो नहीं, अच्छा किसी एक लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक करनी है। तो अब तर्जुमा लिखा हुआ है, सवालों के जवाब आप देख के कोई एक हदीस करके तो आप पूरा पेपर अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा 9th क्लास के लिए पूरा पेपर पैटर्न भी मैंने आपके सामने रख दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, वो भी मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया है। उसके अलावा अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और मजीद अपडेट और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक जो है वो आने वाली न्यू वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन में मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।